Hello. 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 A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I, Musara Jah, will take this immense pleasure to welcome all with this beautiful morning with new challenges and new opportunities on behalf of whole Midji family. I am highly obliged to welcome Chairman Sir, respected Principal Sir, respected head of all the departments, other staffs and all the students present here. Coming together is beginning, keeping together is progress, but working together is success. It's an indeed mantra. Now I request the very renowned director of Govind Vidyalaya, Mr. B.D. Sharma sir. You do not need any introduction. Sir, I'd like you to please grace the stage along with Krishna madam. Please, madam. Okay, sir, please. Students, please maintain silence. We will proceed with lamp lighting ceremony. Now we proceed with offering the bouquet of flowers to Mr. Sharma.
Krishna Menon. By one of our co-founders and directors, Dr. Krishna Menon. Yes, please maintain silence, students. Now, Krishna Menon. Next, we'll proceed on to greeting with the bouquet to Principal Sir by Mr. Sachin Verma Sir, one of our directors of MITI. Next, we proceed on to greeting with the bouquet to Mr. Abhishek Sharma by Mr. Sachin Verma. And then the Vice Principal, Ms. Anita. Okay. So now we'll proceed on to the program. Now I'll request, I'm extremely delighted to have with us the director of Govind Vidyalaya, Mr. B.D. Sharma sir. Sir, please greet us with, motivate the students with your warm words of wisdom. Respectable directors of MITI, Admin GVT, Secretary Sir, and Principal Sir, and my lovely children. For a long time, parents used to come and they proposed me that we want to send our child at Kota for their better future. They want to be a doctor, they want to be an engineer, they want to be IAS officer. I thought that dear children of this locality, when they go to such a far place, they are away from their parents. Homesickness is a type of disease which so many students and they become sick. Take an example, Chetan Prajapati, who was the member of the managing committee. His son topped the result in secondary for his better result at Bangalore. But the climate did not suit him. He returned back. Again, he was admitted in our +2 classes. He completed +2 classes and then he was selected for his engineering classes and he completed he became the degree holder. You see the result of MITI. This is 1 year effort, a year's effort. And this result shows
that Fiji deserve to be a future matter for you people. And your loud sound which you played at the time of lighting the lamp, that proves that you are pleased enough to welcome this meeting. And if any complaint comes from this side, we will put among the directors of among the management of this meeting. Simply our good visit of this meeting is separate one. We have provided the accommodation to them at office. We will provide them the hostel facility also. So many students will come from the far places such as Odisha, Bengal, UP. It may the students of Rajasthan may also come here and toward the founder store of this building at Samudia Center, because your result will attract all the students of different provinces. So will you cooperate this building by making the result of the board examination? Will you cooperate? Are you well-wisher of this building? Then, as they have assured me, they will call the special teacher, expert teacher from Kota or from wherever they will get. They are sure enough to give the result of medical as well as NEET as well as engineering college. IAS officers will also be prepared from this basis. Accounts, they are also having a plan of commerce stream also. They will prepare the foundation course of CA and they will give your support. So please inform your parents that the best institution of the India, of our country, has entered Cambodia, and they have started as soon as the government will give them permission to start it. It may come just 2 days after, just 2-3 days after. It depends on the government of Jharkhand when they will give the permission. Before that, a special classes may be started if you like to get any facility from their side. Thank you. I wish better future for you and of India. Thank you, sir, for inviting us and taking your valuable time for us. Next, we have over here is our Managing Director of FITGI, Mr. Sachin Verma, and MBA alumni from IBS College of Mumbai. Also, the brother of Sri late Saresh Verma sir, who laid the foundation of FITGI. Very good afternoon to everybody. My name is Sachin Verma. Namko. The Lord of Sachin in India, Sachin Bansal. Sachin Tendulkar, the Lord of cricket. Sachin Dev Burman. Sachin, the music composer. A lot of people are there. So it's also a challenge for me to make my name like one of them.
My brother started Mitri in the year 2001, 3rd March 2001. I lost my father in 1995. At that time I was very young. 1995. He was working for Tata Steel. I was not belong to any business family or not. I belong to a very simple, ordinary, middle class family. Who used to live in the ECC flat Kasa, my childhood days. Then I lived. Then after I lost my father, my brother, Mr. Salesh Verma ji, used to teach in the tuition for 200 rupees, 150 rupees, for a small amount of money in the year 1996, I think, 24 years ago or 25 years ago. I was very small at that time. तो हमारे में सिखाया गया संस्कार से सफलता तक होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। तो मिस्टर बैनर्जी के साथ वो हमेशा उनके घर जाया करते थे कि हम एक प्रोजेक्ट सोचे हैं मिर्ची नाम का। तो इनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। फिर उन पर ट्रस्ट किए। फिर दोनों ने स्टार्ट किया मिर्ची क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट में और बहुत अच्छा रिजल्ट होता गया। फिर अचानक 2012 में उनका he was expired in the road accident where 3 people died, a driver, my brother and one lawyer. That shook my life, my mother's life too much. I don't know what to say. At that time I was working with India Books, lower Parel, Mumbai, दादर के ठीक सामने लोअर Parel 8th floor में जॉब करता था। I rarely used to visit Jharkhand, rarely, because I thought that I will work at Mumbai and then after that I will move to Dubai or some Europe country. I never looked at this. मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ये सब इंस्टीट्यूट वगैरह में आने का क्योंकि मैं एमएनसी में जॉब कर रहा था। I was working good, I was getting good incentive. So मैं एक एम्प्लॉय था तो मुझे पता है कि कैसे जॉब वॉब करना है। ये चीज मुझे वहाँ पे माइंडसेट था। तो मैं जब मिर्ची आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। Frankly speaking, I was zero. सब कुछ सीखा, मेहनत किया। तो मुझे ये पता चलता है ये 6-7 साल के एक्सपीरियंस में अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो हर बच्चा आईआईटी निकाल सकता है। जैसे इस साल 2020 में आयुष राज ने निकाला, 97% मुस्कान मेहता ने निकाला, अमन कुमार ने निकाला, रितिका शर्मा ने निकाला, प्रीति ने निकाला। तो आईआईटी मेडिकल मिर्ची एक पूर्ण बन गया है। हर बच्चे आईआईटी मेडिकल पास करेंगे। ये आपको वादा मैं देता हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे हमारा आईआईटी आपको हर बच्चा यहाँ से आईआईटी निकलेगा भी। ये आपको वादा करते हैं हर एक बच्चा में अप्रूव होता है। हर एक बच्चे में पावर होता है। उसको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और गाइडेंस नहीं तो सफल कभी हो सकते आप। एग्जांपल आपको एक बताता हूँ मैं। श्री अब्दुल कलाम को मैं बहुत बड़ा अपना आइडल मानता हूँ। अब्दुल कलाम नाम तो सुने होंगे अब्दुल कलाम जी का। He was a great missile man और हम सबका आइडल भी है। जैसे महात्मा गांधी है तो वो भी है। तो अब्दुल कलाम साहब जब मद्रास उस समय हुआ करता था 1960-70 की बात है। तो मद्रास में जब वो जॉब कर रहे थे अब्दुल कलाम साहब तो श्रीनिवासन जी वो उनके हाई पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा कि कलाम साहब आप डिजाइन करिए एयरक्राफ्ट। तो अब्दुल कलाम साहब फ्राइडे का वो दिन था। वो जुम्मा का नमाज नहीं पढ़ा करते थे क्योंकि वो मानते थे कि सब धर्म मेरे लिए एक है क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड। तो श्री कलाम साहब फ्राइडे को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। सबमिट करने के बाद उन्होंने देखा श्रीनिवासन सर तो बोले क्या बनाया आप ये बिल्कुल रद्दी है अच्छा नहीं है ये। श्रीनिवासन जी ने कहा आपको मैं 2 दिन का और टाइम देता हूँ और आप अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए एयरक्राफ्ट को डिजाइन कीजिए नहीं तो आपका जॉब गया। श्रीनिवासन जी ने कहा किसको? अब्दुल कलाम जी को जो मिसाइल मैन बने। अब्दुल कलाम 2 दिन बहुत ज्यादा मेहनत किए। फिर अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना के दिखा दिया और वैसा मिसाइल उन्होंने बनाया अब्दुल कलाम साहब जो एयरक्राफ्ट में आज का वो मिसाइल बन गया। मिसाइल से मिसाइल बन गया। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर अब्दुल कलाम। तो ये एक तरह का कहा जाए कि हर आदमी लाइफ में गिरता है जैसे अब्दुल कलाम साहब भी गिरे फिर उठे। तो ये जुनून आप में भी होना चाहिए कि हम गिरेंगे और फिर उठेंगे और जेईई में भी पास करेंगे और ट्वेल्थ बोर्ड में भी टॉप करेंगे। ये आप में वो जुनून होना चाहिए। ये कहानी बोलने का मतलब था कि आप वो अर्जुन मतलब जो अब्दुल कलाम साहब गिरे तो आप भी लाइफ में गिरते ही होंगे। ये समझ में नहीं आया वो समझ में नहीं आया होता है ना ये क्लास में।
हाँ, तब फिर उठिए, टीचर से बार-बार डाउट पूछिए और आगे बढ़िए। और जैसा अब्दुल कलाम निकले तो वैसा हम चाहते हैं कि जीबीटी के हर बच्चे अब्दुल कलाम से भी आगे निकले। और एक कहानी बताता हूँ सचिन तेंदुलकर की, क्रिकेट वगैरह में बहुत ज्यादा देखा करता हूँ, नाम है तो असर तो पड़ेगा नहीं। सचिन समझ गए? तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर एक बॉलर बहुत बड़ा, ब्रैड हॉग, नाम सुने होंगे, ब्रैड हॉग, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को 0 में आउट कर दिया। ब्रैड हॉग न्यू आया था, वो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था, खुश हो गया कि मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर रात को जब एक साथ लोग बैठे हुए थे तो ब्रैड हॉग ने उनके डाइनिंग रूम में गया और ब्रैड हॉग ने बोला कि सर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैंने आपको आउट किया, आप इतने बड़े प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने उनको ऑटोग्राफ में लिख के दिया कि मैं अपना लाइफ में कभी 0 में आउट नहीं होऊंगा, मतलब आप तुम्हारे लिए। तो पूरा परेशान हो गया ब्रैड हॉग। अब ब्रैड हॉग देखिए सचिन तेंदुलकर ने मेंटेलिटी देखिए, उसने लिख के दे दिया उसको कि मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे से 0 में आउट नहीं होऊंगा, मेहनत करूंगा और इंडिया टीम को बहुत ऊपर ले जाऊंगा। तो 2003 में इंडिया ने फाइनल भी पहुंचा था और 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता था। 2001 ठीक धोनी उस समय आया, माइक इज नॉट, ठीक धोनी उस समय कैप्टनशिप में आया और फिर वर्ल्ड कप जिता भी दिए, ब्रैड हॉग भी थे। तो ब्रैड हॉग फिर कभी भी आउट नहीं कर पाया सचिन तेंदुलकर को, कभी नहीं, समझ गए? सचिन तेंदुलकर फिर कभी आउट नहीं हुआ, हर बॉल में ब्रैड हॉग का मार तो सामने की तो ब्रैड हॉग ने नॉट वर्किंग आप वैसे बोलिए ना। ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को तो ब्रैड हॉग ने फिर सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं किया और इस तरह सचिन तेंदुलकर फिर हर इनिंग में अच्छा खेला और इंडिया को बहुत बार जिताया। फिर धोनी जी कैप्टन आया और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताता चला गया। तो ये स्टोरी इसलिए मैंने आपको कहा कि देखिए आपका वो मेंटालिटी रहना चाहिए, आपका वो मेंटालिटी रहना चाहिए, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड देखिए सचिन तेंदुलकर का, जो ठान लिया कि इससे कभी आउट नहीं होंगे। तो आप लोग भी वैसा फ्रेम ऑफ माइंड बनाइए कि हम लोग जेई में निकालेंगे, 12th में भी टॉप करेंगे, अपने माता पिता का नाम को गौरवान्वित करेंगे, जीबीटी का नाम और रोशन करेंगे, समझ रहे ना? इसको नंबर 1 स्कूल बनाएंगे। मतलब आप लोग जितना अच्छा मेहनत करेंगे वैसा आपको ऊपर है। दूसरा आप लोग अपने मेंटालिटी रखिए, मेहनत कीजिए सब कोई बच्चे लोग। मैं यही मेरा कहने का जितना स्टोरी है यही मतलब है कि यू शुड वर्क वेरी हार्ड इन योर लाइफ, यू वांट टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, विदाउट मेहनत कुछ नहीं हासिल होने वाला। वो अब्दुल कलाम जी को भी नहीं मिला था, ना सचिन तेंदुलकर को मिला, ना धोनी को मिलेगा। शाहरुख खान का नाम तो आप सुने ही होंगे, चाइनीज है, चाइना में आप सुनोगे वहां पे लोग जॉब करते थे, तीनों लोग लैपटॉप बनाया, स्नैपडील बनाया, अमेज़न बनाया। सुंदर पिचाई को देखिए, वो आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने पढ़ा, सुंदर पिचाई, उन्होंने वर्ल्ड में वो गूगल का सीईओ है, वो कितना उन्होंने मेहनत किया। उनके बारे में मैंने पढ़ा, सुंदर पिचाई के बारे में, कितने डिसिप्लिन है। तो उससे ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, तो आप भी लाइफ में सुंदर पिचाई बन सकते हैं, जो गूगल का सीईओ जो अमेरिका में बैठते हैं वॉशिंगटन डीसी में। तो इंडिया में कोविड के इंजेक्शन बने, उसमें 3-4 लोग सब यंग डॉक्टर लोग उसमें अपना योगदान दिया है, जो कोविड के इंजेक्शन आए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कहने का मतलब है कि हम इंडिया में बहुत टैलेंट है, हम भारतीय में बहुत टैलेंट है, आपके ऊपर
आगे बढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे मेडिकल सेक्टर में, चाहे आईटी सेक्टर में, हर जगह हिंदुस्तान ने ये अपना फतह किया है और आगे भी करता रहेगा। चाहे वो वॉशिंगटन में हो जाए, चाहे वो यूरोप हो जाए, चाहे वो जर्मनी हो जाए, चाहे वो फ्रांस हो जाए, चाहे वो इटली हो जाए, हर जगह ने हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़ा है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी एक सुंदर पिक्चर बन सकते हैं, या सचिन बंसल बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि आईआईटीएन बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईआईटीएन आप बने हैं। तो जितने भी न्यू स्टार्टअप हुए हैं, मैं मानता हूँ कुछ सारे स्टार्टअप नहीं भी चले, लेकिन बहुत सारे आप सक्सेस रेट देखोगे। तुम लोगों ने जो स्टार्ट किया आईआईटीएन डॉक्टर, बड़े बड़े मेडिकल नर्सिंग होम उन्होंने बनाया है। तो आईआईटीएन लोग जैसे फ्लिपकार्ट हो गया है, सुंदर पिचाई हो गया, या मिस्टर अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर है वो इंडिया का, दिल्ली जैसे डेंजर जगह के चीफ मिनिस्टर बने हुए वो, समझ रहे। बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस है, डॉक्टर है, जिन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। हर एक बच्चा 12 में तो टॉप करना, ड्रीम हमेशा बड़ा रखिए आप लोग। अब्दुल कलाम जी बोले है ना, चेज और ड्रीम, ड्रीम्स डू कम ट्रू। ड्रीम हमेशा बड़ा रखिए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। छोटा ड्रीम रखिएगा तो कभी नहीं आगे बढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थोड़ी तो फायदा नहीं है। गाड़ी निकल भी गया गाड़ी नहीं आ Okay, it's a fact that India today is an emerging economy that is destined to achieve milestones on various fronts. We strongly believe in the spirit of India's youth. So to motivate the same, I would like to call upon the stage one of our co-founders, Sir Mr. Krishna Banerjee, sir. Please have it. Very good afternoon to everybody. To all students, teachers, principal, director sir. अभी आपने पूरा सचिन सर, डायरेक्टर सर, सारा चीज आपने बताया। So I want to tell you, our brand ambassador is our student. We have seen the results in the poster, but if you want to see it live, so I will introduce all my brand ambassadors. Please do come in. Please do come in. I was everybody. Please do come in. Our brand ambassador. This is your result. See to it. Please do come in. All the brand ambassadors. See the brand ambassador. This is the IIT Kharagpur results. These are results. Yes, students, we have with us our 2020 toppers.
Okay, so we have here Ayush Raj, who is from, like he has got placement in IIT Kharagpur, All India ranking 1320. And then we have got Akash Ghosh, who has got placed in IIT. We have Saloni with us. So these are all our 2020 results. आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पुस्तक में लगा दिए हैं और they are the results. These are interactive sessions with you only, student. With you, student, we have come here to do the interactive sessions. Okay. If you want to ask any questions regarding preparations level, you can ask. If you want to ask any questions, अभी तक सर ने बताया, सचिन सर ने बताया, आपने सबसे सुना, लेकिन ब्रांड नंबर जो मिट्टी है, खूब ब्रांड नंबर है, जो कि आपके सामने खड़े हुए हैं, you ask any questions. You can ask. ये 2030 के रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, सारे रिजल्ट है. आप 21 के रिजल्ट आप लोग देंगे from your side. From your side. That's why you are coming here. From your side. आज नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए सभी लोगों में से कुछ बंदे यहाँ पर आएंगे। From your side, stand here. आपके तरफ से मैं खड़ा करने चाहता हूँ। और जिस तरह इनको पुरस्कृत किया जा रहा है वैसे ही पुरस्कार आपको भी मिलेगा। ये सब जमशेदपुर के हैं और जमशेदपुर वाला नहीं। All are from जमशेदपुर, कोई बाहर के नहीं है। Nobody is like this. आज तुम भी जमशेदपुर की हो। तुम भी right, right. क्या तुम लोगों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर? अपने हाथ उठाओ। I want to see. कौन बच्चे जो किसको विश्वास है कि अपने आप को क्या हुआ? Yes, good. Very good. Yes, we can see more hands raising. Only these many students. Madam, your voice is audible. बाकी जिनके हाथ नहीं उठे हैं वो मिट्टी से रिक्वेस्ट करो कि उनमें इतनी ताकत भरा दे कि वो दोनों हाथ खड़ा कर सके। अब मिट्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग अपने अगर आप लोग में विश्वास है, अगर क्षमता है तो आप लोग इधर खड़े होंगे। ऐसे बोल दिया ना। आप लोग देख रहे हैं, listen to me. Keep quiet, listen to me. ये जो हर समय नहीं आएगा। आप सुनिए, if you want to ask anything, you ask. For your future, we have come here. For your future. एक सुराना भविष्य बनाने के लिए हम लोग इधर में आए हैं और आप सारे रिजल्ट जो है आपके सामने है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किस लेवल में प्रिपरेशन किया है और they all are general students from catches start हुआ। We have started from the catches. We have started from the catches. Zero level से start करके एक करके आप लोग
It's working. Please maintain silence. दोस्त है NIT जमशेदपुर 98.7%, yes. 98.77%. 77%. आप सोच सकते हैं. You want to ask? पूछे. You want to ask? You can ask. Yes. 36%. और लाइट If you have any queries, you can ask. हाँ मैं अंदर आप कहाँ हैं? कहाँ पे? पूछिए ना बोलिए। You have any queries to ask Akash? You have any queries to ask Akash? NIT Jamshedpur. Any queries? हाँ Next. He is Sunny Kumar Rajat. He is in PIT Mesra. He is in PIT Mesra. What was the thing for us? आपको कुछ भी अगर पूछना है, कोई भी क्वेरीज है कुछ पूछो. सर माइक Akash. then Ayush. Start with Ayush. Ayush, Am I audible? Am I audible to all of you? Yes. Hello everyone. आवाज नहीं आया. Yes. So my name is Akash Bush. I'm mechanical branch NIT Jamshedpur. Okay. So मैंने 2019 में preparation किया था. 2020 में मेरा निकल गया JEE Mains. See, अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था. इसने पूछा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई किया. तो कितने घंटे पढ़ाई किया तो ऐसा कुछ नहीं होता है. आपके हिसाब से होता है. आपको क्वालिटी स्टडी करना है. तो क्वालिटी को करना है. मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो मैं अभी 1 घंटे में कर सकता हूँ, आप हो सकते हैं 5 घंटे में करें. ठीक है. आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैं अभी जो 1 घंटे में कर सकता हूँ, आप वो 5 घंटे में करें. तो आपको मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है कितना घंटा पढ़ना है भाई, कितना वो करना होता है. तो आपको अपने हिसाब से उसको सिक्योर करना पड़ता है. ठीक है ना. टाइम टेबल ऐसा कुछ होता नहीं है. कहा जाता है कि आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया. देखो कोई भी टाइम टेबल बनाओ वो फॉलो होता ही नहीं है. 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होता है. जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ. ठीक है. वो 2 दिन से ज्यादा फॉलो ही नहीं होता है. ठीक है. और कोई बोलता है कि हम फॉलो कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है. झूठ बोल रहा हूँ. और वो नहीं तो वो पागल है. ठीक है. अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो मेरा सजेशन है कि कोई टाइम टेबल मत बनाओ. जो जब मन तब पढ़ो. सारा कुछ पढ़ो. और देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 के ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे. पता नहीं मुझे. ठीक है. 10 के ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे. हाँ ठीक है. सर ने बताया जैसे 10 के स्टूडेंट्स हैं. देखो 10 से जब कोई 11 में जाता है तो बहुत ज्यादा गैप आता है. 10 का और 11 का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा मतलब गैप होता है. उसको कवर करने के लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. अगर कोई गलत आदमी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा.
ठीक है। तो जैसे कि सर ने बताया कि मिर्ची में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। और आप पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड निकाल करके देखिए मिर्ची में कि हर साल इस इंस्टीट्यूट ने टॉपर्स दिए हैं, ठीक है। आप वेबसाइट में जाओ, आप देखो, हाँ mirchi.org, जैसे कि मैम बता रही हैं, आपको ब्राउजर भी दिया जाएगा मेरे ख्याल से, तो उस पे आप जाइए, उस पे आप हर साल देखिए, हर साल इस इंस्टीट्यूट ने जमशेदपुर से टॉपर्स दिए हैं और वो जेन्युइन होते हैं, जैसे कि मेरे फोटो छपा हुआ है, ठीक है, तो वो जेन्युइन होते हैं। तो आप उसपे ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई छाप है जिससे कोई बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि छापते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप थैंक यू आप बेझिझक ज्वाइन करें और हम सब है आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप अगर कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो आप हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू आयुष थैंक यू। Next we have Aman. Come on. I am Aman in NIT Jamshedpur EC branch. If you have any query, you can directly ask me now. Anything related. 98.32. Even I don't remember it. You can ask any question related to yes. Yes, definitely. Just try to do whatever you can do. हमेशा किसी और को मत देखो वो कितने देर पढ़ रहा है या फिर वो क्या कर रहा है। इफ तुमको जो जिस मोमेंट इस मोमेंट में तुमको जो सूट करे वो करना चाहिए। किसी को फॉलो मत करो कभी कि वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो हमको भी 10 घंटा पढ़ना है, फिर वो 5 घंटा पढ़ रहा है और वो कैसे पढ़ रहा है। कभी किसी और को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो तुमको सूट करे, जिस शेड्यूल जिस टाइमिंग सब जो तुमको सूट करे वो करना चाहिए। फॉलो करो और खुद को फॉलो करो, किसी और को कभी मत करना, नहीं तो लास्टली रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला हमको लगता है। अंदर आ जाइए। Yes, it is my story that even in first means इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ था कि मेरे को मिल जाए कोई भी NIT, इवन कोई भी लोअर NIT इवन मेरे को नहीं मिलने वाला था। Just because of lockdown, I feel I am lucky because लॉकडाउन के टाइम जितना मेहनत किया शायद वो 2 साल में नहीं किया है। तो ये जो 6 मंथ का था, yes, very ample time, like from last हम लोग का जो in my batch our exam got cancelled due to COVID-19, that computer exam 12th, I think everyone knows. From that day to 5th September, I still remember 5th September I did my best. Whatever I can do in that range, I did. In that 6 month or 7 month, I think 6 months, 7 month full preparation, at the end you can get any result you want. We have Ayush again. Okay, he has got place in IIT Kharagpur. Now you can listen. Hello everyone. तो कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी, कुछ भी? Yes.
जो 11-12 हम दिए उस टाइम जब जेई मेंस दिए तो उस टाइम मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ था और जेई मेंस भी जस्ट क्वालिफाइड हुआ तो फिर बहुत डिमोटिवेशन हुआ कि नहीं होगा, एक साल फिर वही पढ़ना पड़ेगा और एक साल लग जा रहा है, टाइम फिर बीत जा रहा है। तो फिर भी हम कोशिश किए सब और जितने भी फैमिली मेंबर्स है और मिट जी सब अच्छा गाइड किया मेरे को, स्पेशली प्रभात सर मेरे को सबसे ज्यादा गाइड किए पर्सनली भी और सब चीज में गाइड किए। और तो वही शेड्यूल वही बहुत समझाए मेरे को कि कर सकते हैं कोई। मेरा बोर्ड्स का था 79%, जस्ट एवरेज। तो अगर मैंने भी बोर्ड में 79% से आईआईटी खड़गपुर जेई एडवांस क्रैक किया तो सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये बात नहीं है। बस खुद में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और एक अच्छा गाइडेंस करना चाहिए। और कोई थैंक यू। Next we have Sunny Rajat, who is in VIT Mishra now. मैंने भी ड्रॉप लिया था 12th के बाद, जैसा कि आयुष ने कहा, प्रभात सर ने काफी हेल्प किया हम लोग को, उन्होंने काफी ज्यादा गाइड किया और यूजी में पढ़ने का माहौल बहुत काफी अच्छा है। आप क्लास के बाद भी बैठ के पढ़ सकते हैं, टीचरों से डाउट पूछ सकते हैं, काफी सपोर्टिव है इसमें। टीचर कुछ पूछना है? You want to ask? Hello, my name is Saloni and I got admission this year in Ayush. I was also a dropout student in 2018 in Mujji, and in 2019 also I wanted to be in Mujji, but my parents didn't allow. But then also faculty members had supported me. The material is very good. If you solve material and ask doubt from teacher, this is sufficient. You don't need any other material. And I also studied 11-12 in LN, and there is nothing different in Mujji. You just need proper guidance. Did you listen to this one? She also studied in LN. After that, she have joined Mujji. Okay, go to LN. Yes, go to LN. And after that, she have joined Mujji. And the result is there. See, you can see. And our faculty members also, Sushant sir is there. Our faculty member. These for the medicines. Okay. अब देखिए, इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका डोर स्टेप में हम लोग आ चुके हैं। किसी को और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डायरेक्टर सर हर समय को बोलते थे, किसी को हम बोला सर एकदम आपका स्कूल को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिलेंगे और आपका स्कूल से ये सारे रिजल्ट्स भी आएंगे। We are in your doorstep. Okay. You can ask. You can ask if you want to ask anything. Queries? Okay. No queries. Thank you. Hello everyone, I am Ronit Kumar and I am currently in NIT Jamshedpur Production Department. I want to say only 2 lines that you need patience and there is no requirement of any certain time to do anything. Okay. जितना भी टाइम दे सको बस उतना दो, टॉपिक कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे उतना दो, बस नथिंग एल्स। तुम्हें मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तुम्हें कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। That's all. Okay, thank you.
My name is Ankit Raj. I am from BIT Misra doing BTech in Biotechnology. I am also a dropout student. मैंने भी ये ड्रॉप आउट करने के बाद मुझे भी लगा कि गिव अप कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग ये कॉलेज सब ले लिए थे, मेरे फैमिली लोग सब सपोर्ट किए और फिर मैंने बीटी ज्वाइन किया। यहाँ हर एक क्लासेस मैंने अटेंड किया, फिर मुझे अच्छा लगा यहाँ से पढ़ते हुए। मेरा ये ग्रेड सब ग्रेड हो रहा था और लास्ट में बिना गिव अप किए मैंने दिया और मुझे कॉलेज मिल गया। So student, now you can understand the real facts. आप देख सकते हैं आपका सामने सारा रिजल्ट्स है और सारे बच्चे लोकल्स, ऐसे कोई बाहर के बच्चे नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। अभी आपके स्कूल में एग्जाम your principal, please to come in, sir. Your principal will be addressed to you regarding this exam and all these things. So please. Good afternoon, teachers, students, and all the members here. Now, students, before giving the certificates, a few lines. Please listen to it very carefully. The day when I joined here, the only objective was to uplift the students' performance in year to year. And based on that, only we introduced, I requested Director Sir and the other members, and then I made it introduce the scholarship for those students who take in Standard 11, and was very happy that it worked very well, and this year the number has been more than last year. But at the same time, very sorry to say that after first year, the number is left only to 1 or 2 students. See, we feel very proud when we say that I am a dropout and now I have become a IITian or I have got a placement in NIT. It doesn't mean that you should also drop out once and then you will achieve this. That is not the case. There are people who fall and then they realize that what mistake I have done. You will not understand it much because you are not paying it. You are not earning it. All these scholarships or whatever we give, that is a direct support to your parents so that they can make you study at a better place in a better way. As we have heard just now that from standard 10 to 11, there is a huge jump in the syllabus and the studies. You have to maintain that. It's not how many hours you study. This is all a foolish question. Within 1 year, 1 hour, if you are able to study, that is enough for you. You make yourself in that way. There was a video clip also where it was shown that in an office, just to please, we stay for days back, means for hours back. Suppose the office hour is up to 4.
just to show the boss, I stay till 7, and then the impression goes that I am staying till 7, I am doing more work. That is not the condition. आप गधे हैं जो समय पे काम खत्म नहीं कर पाते हैं. That is the word I will say. So after getting this, then when we came in contact with Midzi, again I requested sir to sponsor the fee for our students, and then only 100 rupees was, means you were told to pay only 100 rupees for registration. And you are getting that opportunity and you are not utilizing that. The number of students who are giving the test, the numbers are very less. It's very disappointing. Only you have to give your time, and it's all been done for you only. And yesterday we were discussing that suppose our students who are very means who get a better percentage, if they take admission in your institute, then what percentage you will give, what scholarship you will give. Yesterday we were talking to him. So every time I am thinking about you people and you are least bothered about it. So not for ourselves, not for anyone else, at least for your parents and for yourself, you work hard and get the best. At present, the certificates which you will be getting, if you take admission, 35% is been written as the scholarship you will get. But depending on your performance and your board result, I assure you that I will talk on behalf of you for getting more than this. So students, work hard, no limit of timing. The time is only we have to see the time up to when you understand the topic clearly and you think that you are confident enough to face the competition. That is all. That is all, everything, your timetable, your everything, hours of study, everything is that only. Thank you, Dee. So we'll proceed on with the award distribution, that is the certificate distribution. So I'd like to call over here Kanhaiya Kumar from Standard 10A, Govind Vidyalaya, Kanhaiya Kumar. पुरस्कार वितरण के पहले आप लोगों की तरफ से जो प्रश्न आए थे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ 1 घंटा बैठने के बाद भी आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिससे बाहर निकल के पूछा जाए आपने क्या सुना, उनका जवाब होगा पता नहीं।
ये गुण तुम में भी है। क्या तुम्हें ये याद है कि जिस दिन पहले दिन स्कूल आए थे, उस दिन सबसे पहली मुलाकात किस टीचर से हुई थी? सबको याद है, क्योंकि उस समय तुम कंसंट्रेट थे। शादी के समय में जब लड़की को देखा जाता है तो हर लड़के को अपनी बीवी की शक्ल याद हो जाती है। लड़की भी घूंघट से जब अपने दूल्हे को देखती है तो उसकी शक्ल याद हो जाती है। क्यों होती है? कंसंट्रेशन। वो चूंकि एकाग्र होकर के देखता है, कंसंट्रेट हो जाता है उस समय। अगर आप भी कंसंट्रेट हो जाएंगे जब आप पढ़ रहे हैं, आपको जल्द से जल्द, आपको याद है एकलव्य की कहानी? उसके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। नहीं, एक मूर्ति थे। द्रोणाचार्य की मूर्ति थी। द्रोणाचार्य की मूर्ति। उन्होंने गुरु जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पढ़ाने से, उसको शिष्य बनाने से। लेकिन उन्होंने एकाग्र हो गए थे कि नहीं, मेरे को तो इनको गुरु बनाना है। उन्होंने उनका स्टेचू बनाया और वहीं से अभ्यास किया। अभ्यास करके साबित कर दिया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन मोर परफेक्ट। उन्होंने इतना अभ्यास किया। आपको मिर्जे को सहारा दिया गया है क्या? प्रिंसिपल साहब ने ठीक बताया कि आकर के वो तुम्हारे ही बारे में ज्यादा सोचता है। क्या तुमको भी साइंस का एक नियम है, ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन आपकी तरफ से रिएक्शन क्या आ रहा है? प्रिंसिपल साहब आज तक पढ़ाई तुम्हारी नहीं कर पाए, क्योंकि तुम लोगों के साथ तो सपोर्ट नहीं मिलता। अभी आपको वेबसाइट के कंपटीशन में भी भाग लेने के लिए जब चांस मिला था, उसमें हजार रुपए के पुरस्कार बांटे गए, सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें भी बहुत से कम क्लास हैं जिनके 100% विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेशन दिया। बाकी क्यों नहीं देते हैं? अगर बातें करते हैं पेरेंट्स की जबरदस्ती पढ़ना ही है, तो उनको साफ साफ रिफ्यूज कर दो कि बिना पढ़े भी हम अपना काम चला सकते हैं। अपने आप से धोखा मत करो। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। तुम में से हर विद्यार्थी स्कॉलरशिप लेकर के, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा पोता तुम्हारे सामने है, इस स्कूल का टॉपर था, मास्टर ऑफ एजुकेशन बन गया, एक बार भी फेल नहीं किया। ये लोग तो कहते हैं मैं ड्रॉप आउट हुआ। मेरे पापा ने कहा था जब मैं 3 क्लास में था कि बेटा कभी तुम फेल नहीं कर सकते। हमने पूछा था क्यों? मेरे को डर लगता था परीक्षा के नाम से। बोले नहीं, तुम ध्यान से पढ़ते हो इसलिए तुमको याद नहीं होता, याद हो जाता। अब इस बात पर तो आपको हंसी आ गई क्योंकि आप गलतियां ढूंढ रहे थे। उम्र का ख्याल नहीं है कि मैं 80 वर्ष का हो गया, मैं जो बोलना चाहता हूँ सो वर्ड नहीं मिलता। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में, जैसे आप लोगों को जीवीटी बॉय और जीवीटी गर्ल दिया जाता है, उस समय हम लोगों के समय में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिलता था और वो 48 प्राइजेज आउट ऑफ 50 मैंने अकेले जीती थी। अभी वो हेडमास्टर तो है नहीं, लेकिन रिकॉर्ड है स्कूल में और मैंने कृष्णा जी को ले जा करके वो रिकॉर्ड दिखवाया था जिस स्कूल में मैं पढ़ा था। तो मैं उसी सपने को पूरा करना चाहता हूं अपने हर विद्यार्थी से।
और इसीलिए प्रिंसिपल साहब के साथ में जब भी मैं बैठता हूँ, एक ही है इच्छा है कि आपको विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, हम लोग ताली बजाएंगे और मेरे विद्यार्थी इंडिया टॉपर बनेंगे। और आप इस बात का सबूत देख सकते हैं, आप जहाँ वॉलीबॉल बास्केटबॉल खोलते हैं, लगा हुआ है और आपके अवार्ड भी घोषित किया हुआ है। किसी को पैसा काटते हैं, कोई स्कूल ऐसा अवार्ड देना चाहेगी कि आप एक तो इंडिया टॉपर बने और ऊपर से 2 लाख रुपया, आप पूरे जीवन में 2 लाख रुपए स्कूल को फीस नहीं देंगे, लेकिन आपको बदले में 2 लाख रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, 2 लाख के अलावा आपको पूरे मेडिकल के या इंजीनियरिंग की या जो भी पढ़ाई करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेट होता पर। अभी कुछ बच्चे, आज का प्रोग्राम आपको सूचना नहीं थी, गेट की तरफ जा रहे थे, अरे आज वो आप कहाँ बनाना नहीं सीखा, जब आपको पता था कि मिर्जी का प्रोग्राम हो रहा है। आपको पसंद नहीं है तो नहीं आते, घर वालों को कह देते कि मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है, पापा एक तो टेम्पो खरीद दो, हम टेम्पो चलाएंगे। वरना मेरे यहाँ दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहाँ रेजा कोरी की जरूरत पड़ती रहती है। अब तुम्हें वो स्ट्रिक्ट है, काम वही करो जो तुम पसंद करते हो, जो तुम्हारे मन का इच्छा। जब दबाव में अगर कोई काम करोगे तो सफल नहीं होगे। अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे तो 5 मिनट में भी वो चैप्टर तैयार कर लोगे। इसलिए कभी मत पूछो कि कितने घंटा तुम पढ़ते थे। बच्चों ने सही जवाब दिया। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू गेट योरसेल्फ कंसंट्रेट टुवर्ड्स द टॉपिक। आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। वरना टीचर क्यों बार बार पूछने पर वो क्यों बातें करते हैं। अभी बच्चों ने भी कहा जो पूछिए, आपको क्या पूछना, आपको म्यूजिक की क्लास करें या स्कूल में क्लास करें, टीचर से तब तक आप समझ नहीं जाते हैं तब तक आप पूछिए कि सर समझे नहीं अभी तक, लेकिन आप अपनी इंटरेस्ट की वस्तु को ही समझेंगे। किसी को, बच्चे को कविता बनाने में रुचि है तो वो कविता ही बना पाएगा। मैं कविता नहीं बना पाता हूँ, साहित्य नृत्य की डिग्री लेने के बाद भी मैं कभी नहीं बन सका, क्योंकि मेरी रुचि उसमें नहीं है। इसलिए अपना रुचि का विषय देख लो कि क्या है, किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसी काम में तुम प्रवीणता प्राप्त कर सकोगे। आज बनना सफल सभी लोग हो सकते हैं। थैंक यू। आइए कन्हैया जी। कन्हैया जी। Next we have SK Arazuddin from 10A. SK Arazuddin from 10A. Next we have Kehkashan Parveen from 10B. Kehkashan Parveen from 10B. Round of applause for her. Next we have Sumaya Parveen from 10B. Sumaya Parveen, 10B. Next we have Sharandeep Singh from 10C. Sharandeep Singh.
From 10C. Next, we have Adiba Fatima from 10C. Adiba Fatima from 10C. Next, we have Naushaba Afreen from 11 Science. Naushaba Afreen, is she present? She is absent. Okay. Next, we have Neeraj Kumar from Standard 11 Science section. Is he present? Neeraj Kumar? Absent. Okay, next we have Muskan Kumari from Standard 11 Commerce section. Muskan Kumari from Standard 11. Commerce section. Round of applause for her. Next we have Mohammad Ghalib from 11 Commerce section. Is he present? Absent. Okay. Next we have Tehseen Ahmed from Standard 12 Science section. Tehseen Ahmed. Round of applause for him. He's coming. Next we have Rishi Kumari, 12 Science. Rishi Kumari from 12 Science. Rishi, 12 Science. Then we have Achin Simran from 12 Commerce section. Achin Simran from 12 Commerce section. Next we have Samardeep Kaur from 12 Commerce section. Samardeep Kaur. Now we have got one more student over here, Vivek Purti. He has qualified for NEET this year, NEET 2020, and is now in RIMS Ranchi. He will share your experience. Yes, Vivek, come here. He will share his experience with you all. You have seen IIT KGP? Right, IIT KGP. That RIMS Ranchi. आप लोग देख सकते हैं all top colleges में MIT students there, whether it is IIT, whether it is medical. Yes, yes. Good afternoon to everyone. Myself Vivek Purti from RIMS Ranchi, first year batch, 2020. First of all, thank you, Mixi, for allowing me to have myself in front of all. So the tips and tricks. Everyone's asking what's the tips and the tricks for qualifying any NEET or IIT exams. It's just the hard work. If you are studying and give you 100%, then it's the result. And below 100% is nothing. That's one thing, just be thorough and don't let yourself down. Okay. I myself have 1 year back. Okay. When I failed in my first attempt, confidence lose ho jata hai. Parents expect karna chhod dete hain. But if you believe in yourself now, give it one try. Okay. अगर एक try और देने में क्या ही जाता है. So I just gave my 100% for 1 year, and the result is I am in the RIMS first year. Thank you, Minji.
I've done 2-year classroom course in chemistry, and I must say, chemistry sir, Mr. Prabhat sir, I've been very close to him, and in chemistry he helped me a lot, and the faculty was very good, and if you want, you can also join Ministry, and they will provide you the best material so that you can qualify in the NEET or IIT exams. Thank you. Thank you, Vivek. Okay, now there will be a award distribution ceremony for our 2020 toppers. Yes. We'll request Mr. B.D. Sharma sir to please hand over the awards. First we have Saloni. A huge round of applause for her. Next we have Ayush Raj, IIT Kharagpur. Wishing you all the best, Ayush. Next we have Akash Ghosh, NIT Jamshedpur. Next we have Aman Kumar, NIT Jamshedpur. We'll request Krishna ma'am to please hand over the awards. Aman Kumar, NIT Jamshedpur. Next we have Ankit Raj. A huge round of applause for him. Next we have Ronit. We'll request Abhishek sir to please hand over the awards. Huge round of applause for him. Next we have Sunny Rajak, VIT Mishra. Huge round of applause for him. Next we have Vivek Purti, LIMS Ranchi. Last but not the least, now we want to hear from Abhishek sir. Honorable Managing Director, Govind Vidyalaya, Administrator Madam, Principal Sir, Director of MIDSI, and whole MIDSI team, teachers, and all the students. At the outset, I would like to appreciate the students of Govind Vidyalaya. Why? Because their result bound the MIDSI to come in Tamulia and open their branch from Sakshi. So, please be careful. So first of all, clap for yourself, because everyone goes Tamulia, Sakshi for a coaching institute, but now you have the opportunity at Tamulia to get what for you goes to Sakshi. Thank you very much. So you don't have to go to Sakshi now. Sakshi Institute has come to Tamulia for you all.
Okay, so avail this opportunity. Next, I would like our faculty, some of our faculties, those who are present here. We have got Sushant sir. Sir, please, the stage is yours, so he'll share his experience with you all. Okay, so. So, respected chairperson, principal. Okay, my name is Sushant, and I'm a biology faculty. तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि I was one of like मैं आप लोग में से एक था, मतलब पीछे जो बैठे हुए हैं वैसा था मैं. So I was very timid and shy fellow in during my school days. Okay. तो मेरे को सक्सेस का मुझे मतलब सक्सेस का मीनिंग नहीं पता था. यहाँ हर कोई आ रहा है और अपना अपना सक्सेस का अपने हिसाब से बोला जा रहा है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी, और सब कोई सक्सेसफुल होना चाहते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू एक बार मेरे को आई एम फ्रॉम विद्या भारती चिन्मय विद्यालय टेल्को. ओके. तो 2012 आई पास आउट. ओके. तो वहां में यहाँ तक कि I received the stage blunder award. Like during my graduation day, I received the stage blunder award. मेरे को स्टेज पे बोलना भी मतलब ये था. तो सक्सेस क्या होता है, जो उस दिन हम नहीं बोल पाते, मैं आज आप लोग से वो शेयर करूंगा कि मैं उस दिन क्या नहीं बोल पाया था. तो एक अब इतने सारे नाम सुने ही आप लोग, तो एक और नाम सुने आप लोग, सोक्रेटिस का नाम तो सुने ही होंगे, ग्रीक फिलोसोफर. अगर आप लोग प्लीज लास्ट बेंचर्स, इफ यू प्लीज बी क्वाइट. मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं बोर नहीं करूंगा आप लोगों को. लास्ट बेंचर्स. तो सोक्रेटिस जो था वो ग्रीक फिलोसोफर था. तो उससे एक बच्चा पूछने आता है कि मेरे को सक्सेस चाहिए, ये कैसे मिलेगा. So he was a great philosopher of that time. So वो उस बच्चे को सी शोर के पास समंदर के पास ले जाता है, और समंदर में कैरी करता है, मतलब उसको आगे तक ले जाता है. ठीक है ना. और जैसे ही वो लोग समंदर में मतलब गले तक पानी में थे, तब वो क्या करता है, सोक्रेटिस क्या करता है, उसको डुबा देता है. ठीक है. तो डुबा देता है, तो वो सांस लेने के लिए 10 सेकंड के बाद मतलब उसको नहीं मिल पाता है. he felt suffocated obviously. So तो फिर क्या होता है कि वो गुस्सा हो जाता है सोक्रेटिस से कि हम आपसे सक्सेस का डेफिनेशन पूछने आए, आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं, और आपने मेरे साथ ये क्या किया. उसने एक बार नहीं किया, उसने 3 बार किया. ठीक है. बार बार जब भी वो जाता था, तो लास्ट में वो बोला कि आप इससे जताना क्या चाहते हैं. तो ये जताना चाहते हैं कि आप लोग को या हम लोग को, मतलब किसी को भी सक्सेस तब मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हाँ खुद से, मतलब हम लोग उसके लिए एफर्ट डालते हैं. मतलब और सिर्फ एफर्ट नहीं, उस तरीके का एफर्ट जो ऑक्सीजन लेने के लिए वो उस समय लड़का वो किया था. तो सक्सेस ऐसे मिलता है, डिटर्मिनेशन, पैशन. और मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे मेरे लाइफ में. I was very inspired by the teaching faculties of Kota. Okay, so that actually motivated me to become a teacher. वैसे मेरे करियर में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, 1 to 1 लाइक डॉक्टर बन जाओ, और 1 to all बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जो कि आजकल बहुत ही है. तो यही चीज है कि मैंने टीचिंग चुना क्योंकि ये मेरा पैशन है. So that's all. Thank you. Okay, thank you, sir. Next, we have got Varsha ma'am with us. She'll share her experience with you. She is a bio faculty at our place. Good afternoon to all our respected faculties and my dear students. अगर मैं सक्सेस की बात करना चाहूंगी, कैसे सक्सेस मिलता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अपने टाइम का महत्व पता होना चाहिए. और दूसरी बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है लाइफ में, और उसी की तरफ बिल्कुल एग्जैक्टली डिटरमाइन होके डिसिप्लिन के साथ अगर आप करोगे
तो वो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में टाइम लगे कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा होगा एट द एंड ऑफ द मूवमेंट आपको ये फील होगा कि हाँ आप कर सकते हो। जब मैंने बायोटेक किया था एमएससी के टाइम पे, तो मुझे बहुत सारी चीजें थी नहीं समझ में आती। मुझे लगता था कि यार ये क्यों पढ़ना है, इतना क्यों पढ़ना है। फिर उसके बाद जब मैंने भी कोचिंग ज्वाइन किया था नेट क्वालिफाई करने के लिए, तो उस टाइम पे जब मेरी मुलाकात मेरे बहुत अच्छे फैकल्टी से हुई, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा, रट लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है। आप लोग ये चीज ध्यान देना कि अगर आप कोई चीज समझे हुए होते हो तो आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर पाते हो। तो पढ़ाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हाँ आप आज पढ़े, रट लिए, हो गया, फिर उसके बाद आपसे आपका कोई जूनियर पूछता है या फिर आपका कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर पूछती है तो आप उसको बताने के लिए कैपेबल ना हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी पढ़ो तो बहुत अच्छे से समझ के पढ़ो। टीचर आपके लिए है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। थैंक यू। Okay, so students, there is a question to you all. Do you all want a question answer round? If you have got any queries regarding 10th boards, 12th boards, or regarding IIT, JEE, NIT, if you have got any queries, we can have a question answer round right now. We'll be distributing certain feedback forms, question forms. We'll be giving you this. If you have got any doubts regarding IIT, JEE, how you need to crack it, or NIT, you can write it down over here and we'll entertain it. Okay. So, a question round now. Okay, so I'm distributing this. Okay, I'm doing one thing, as because we are having shortage of time, I'll be handing over these feedback forms to some of those students. Those who are interested, they can come down over here and I'll give it to them. You can take it back to your home and you can just write your queries, and next time you can submit in your office and we'll entertain it directly. Okay. Okay, so the students can मिर्ची की बिल्डिंग का टीचिंग वर्क आज से शुरू हो रहा है। आज उस बिल्डिंग का फीता कटेगा और वहां एंट्री शुरू होगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जा करके सीढ़ियां चढ़ करके, अप स्टेयर्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जा करके आज भी दे सकते हैं। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक मैं और कृष्णा जी और आपके प्रिंसिपल साहब उसका रिबन नहीं काट दें। क्या हम लोगों को परमिशन दे रहे हैं आप लोग? क्या हम रिबन काट दें? मिर्जी के विकास की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी अनुमति से ही मैं वहां जा रहा हूं। इसलिए रिजल्ट अच्छा से अच्छा देना है। अब मैं वहां जा रहा हूं, मेरे साथ जिन विद्यार्थियों को चलना है वो चल सकते हैं। बाकी आपको जो भी वो मिठा कराने की परंपरा जो इनकी है वो मिठाई लीजिए। और यही 2 शब्दों में आपको धन्यवाद दिया गया है पार्टिसिपेशन का। मैं आपकी अनुमति से वहां जा रहा हूँ। Now teachers, please pay attention. Students, don't move now. And teachers, some refreshment, I think so, they have arranged. So while going outside the door, they will collect from here only, okay? So you will go in line. Be seated. please don't get up at once. Please be seated. Please be seated, students. You will be leaving row by row.
Please be seated. Please be seated. मैं नहीं देख रहा हूँ। I would like to thank one and all for giving their precious time and being a part of this event. Thank you once again for joining us, all the lovely students and the teachers. And please maintain silence, okay? जाते silence maintain करके जाओ. And I'll be giving these feedback from group के लिए. Yes, please noting. Please behave yourself. Please leave row by row. Row by row. Excuse me. कहाँ पे? वहीं पे मतलब सर ये यहीं लेके आना है। यहीं पे लगाइएगा, यहीं पे लगाइएगा मैडम। मैडम यहाँ कहाँ लगाइएगा?
लेके आ रहे हैं कैची उची। मेरा क्या बन गया? हम लोग आ सकते हैं ना सर? हम शॉर्ट काम है, हम पहने का तो घर पर चलिए। अब आए तो जल्दी घर पर। स्टैंड हटा, मोबाइल निकाल। वाले कौन करो?
बाप रे बाप, इतना गर्मी लग रहा है, कैसे बैठे ना आदमी। एक्वा में लकड़ी कोयला लकड़ी जलता रहता है, गर्मी आगे लग रहा है। इनके तरफ दोनों इसमें डाल दे।